Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 9 students, this is a question on variation and it has been taken from your reinforcement worksheet. It is a past paper question from November 2002, and in this video inshallah we'll be looking at the solution and the explanation of this question. So let's just begin with the question first. I am reading out the question since it is a word problem on variation, so we have to read the question first and we have to focus on the statement line because the statement line will tell us what is the relation between the two quantities that are mentioned in the question. तो पहले question को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, then we will identify the relation, then we will start off with making the equation क्योंकि इस तरह के questions में you have to make an equation and then you have to move forward with the solution. ठीक है, तो तीन parts हैं इसके, तो all the three parts are linked together. पहला part solve करेंगे, उसके बाद दूसरा part, फिर then we will move on to the third part. So let's just read the question first. थोड़ा सा question को समझते हैं, उसके बाद इसका solution जो है वो देखेंगे. The question is the force of attraction between two magnets is F newtons. ठीक है, so the first quantity is force जो कि F newtons है. And what is the relation between other quantity क्या है? The other quantity is the distance. ठीक है, यहाँ mention है distance. So there are two quantities. The first one is force and the other one is distance. And what is the relation between the two quantities? The relation is inversely proportional and inversely proportional to the square of the distance. So there are two quantities, force and distance, and the relation between them is inversely proportional to the square of the distance. Force is inversely proportional to the square of the distance. So we will first start with this statement line and we will convert this statement line into mathematical form. So since the first quantity is f, so I will start off with writing f. This is f, and this is the sign of proportional. Since it is inversely proportional, so I have to write the other quantity in the denominator. What is the other quantity? The other quantity is d, and it is square of distance, so I will write d square. So f is inversely proportional to d square, and you know that when we remove this proportional sign we have to insert an equals to sign and a constant k. तो ये काम तो हम हर क्वेश्चन में करते थे, हमें जो है वो इक्वेशन बनानी पड़ती थी, तो हमने जो है वो एक के की फॉर्म में जो है वो इक्वेशन बना ली है. देन वी विल मूव ऑन. हम क्या करते थे, उसके बाद हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. ठीक है, ऐसे ही करते थे ना क्वेश्चंस को. पहले हम इक्वेशन बनाते थे, इक्वेशन बनाने के लिए हम ये वाली लाइन को फोकस करते थे कि भाई दोनों क्वांटिटीज में व्हाट इज द रिलेशन. द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिंपल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो मैंने फोर्स लिखा एफ, फिर मैंने प्रोपोर्शनल का साइन यूज किया. प्रोपोर्शनल का साइन हमेशा ऐसे ही होता था. एंड देन सिंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैं इसको वन अपॉन डी स्क्वायर लिखूंगा. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो मैं इसको न्यूमरेटर में ही लिखता, डिनोमिनेटर में नहीं लिखता. इनवर्स में मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ. एंड देन आई हैव टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. जब मैं साइन को रिमूव करूंगा तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट मुझे इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है. तो दिस इज एफ इज इक्वल्स टू के अपॉन डी स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब जरा वो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. व्हेन मैग्नेट्स वर एट सर्टेन डिस्टेंस द फोर्स इज 10 न्यूटन. कह रहा है कि जब मैग्नेट एक सर्टेन डिस्टेंस पे थे, हमें डिस्टेंस नहीं बता रहा, कह रहा है सर्टेन डिस्टेंस, कह रहा है द फोर्स इज 10 न्यूटन. व्हाट इज द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज डबल्ड. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हम के की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमें दोनों सेट ऑफ वैल्यूज नहीं दी. उसने सिर्फ फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन और वो डिस्टेंस नहीं दे रहा. तो इसका मतलब है यहाँ मैं एग्जैक्टली के की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता. तो यहाँ मैं दूसरा वाला मेथड जो है वो यूज करता था, मैं जिसमें के की एक इक्वेशन बनाता था विद रिस्पेक्ट टू डी स्क्वायर. कोई वेरिएबल होता था इसमें और फिर मैं उसको आगे यूज करता था. तो मैंने यहाँ बिल्कुल उसी तरह किया है. मैंने क्या किया है कि चूंकि यहाँ सर्टेन डिस्टेंस था तो मैंने सर्टेन डिस्टेंस की जगह डी ही रखा है. ठीक है, तो मैं क्या क्या है मेरे पास, आई हैव फोर्स जो कि 10 न्यूटन है, तो मैंने फोर्स की जगह पे एफ की जगह पे 10 लिखा. इक्वल्स टू के की जगह पे के लिखा क्योंकि मेरे पास के की वैल्यू तो नहीं है. और सर्टेन डिस्टेंस का मतलब है आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. अब मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं है तो मैं डिस्टेंस की जगह पे ही डी लिखूंगा. तो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल्स टू के अपॉन डी स्क्वायर. सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मुझे के की एक इक्वेशन बनानी पड़ती है. तो मैंने के को जो है वो सब्जेक्ट बना लिया, डी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा था, 10 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो के इज इक्वल्स टू 10 डी स्क्वायर. तो ये मेरे पास के की जो है वो एक इक्वेशन बन गई डी की फॉर्म में. क्योंकि सिंस आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ डी, अगर मेरे पास डी होता तो मैं के की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेता, लेकिन मैं अभी के की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता. तो के की फिलहाल जो वैल्यू है दैट इज 10 डी स्क्वायर, मैं यही यूज करूंगा. और मुझे क्या करना है, मुझे फोर्स फाइंड आउट करनी है, मतलब मुझे एफ फाइंड आउट करना है. और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस डबल हो गया. पहले डी था, पहले जो मेरा डिस्टेंस था वो डी था, वो डबल हो गया. तो डबल का मतलब है कि अब मेरा डिस्टेंस जो है वो 2d हो गया. और के की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है मैंने, के की वैल्यू है मेरे पास 10 डी स्क्वायर.
तो अब मेरे पास इक्वेशन है, आई हैव द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ के एंड डी स्क्वायर। यहाँ के और डी की वैल्यू जो है वो मैं पुट करूंगा और मैं एफ की वैल्यू निकाल लूंगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डाटा। एफ मुझे फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू मेरे पास अब 2d है और के की वैल्यू मेरे पास है 10d स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है 10d स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में 10d स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। नाउ डी की वैल्यू है 2d और चूंकि यहाँ डी स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2d का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2d ब्रैकेट्स में लिखा और मैंने स्क्वायर लगा दिया। 10d स्क्वायर एज इट इज ऊपर आ गया। 2d square मतलब I have to take the square of 2. 2 square is 2 multiplied by 2 that is 4. d square is d square. d square से d square cancel हो गया। 10 upon 4 का मतलब हो गया 5 upon 2 और 5 upon 2 को if you want to convert it in decimal तो आपके पास जो फोर्स आ गई that is 2.5 न्यूटन। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फोर्स आपकी 2.5 न्यूटन हो गई। पहले आपकी फोर्स थी 10 न्यूटन जब एक सर्टेन डिस्टेंस था। अब वही सर्टेन डिस्टेंस जब डबल हो गया तो अब आपकी फोर्स जो है वो 2.5 न्यूटन आ गई है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में उसने मुझे बस ये बोला कि राइट डाउन अ फॉर्मूला कनेक्टिंग एफ डी एंड अ कांस्टेंट के। तो वो मैं फॉर्मूला जो है वो पहले ही लिख चुका था, तो मैंने यही फॉर्मूला जो है वो नीचे कॉपी कर दिया। एफ इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है व्हेन द मैग्नेट्स आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट द फोर्स इज 2 न्यूटन। नाउ अब देखो पार्ट सी में वो मुझे दोनों वैल्यूज दे रहा है। वो मुझे डी की वैल्यू भी दे रहा है, वो मुझे एफ की वैल्यू भी दे रहा है। तो जब दोनों वैल्यूज आ गई है मेरे पास तो फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहले मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो सिंस 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया तो डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, फोर्स इज 2 न्यूटन, एफ की वैल्यू 2 न्यूटन हो गई। आई हैव द फॉर्मूला। फॉर्मूला मेरे पास वही है, एफ इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ मैं के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। एफ की जगह पे मैंने 2 यूज किया, के एज इट इज आ गया और डी की वैल्यू 3 है तो मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया। 3 स्क्वायर इज 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 और 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 टाइम्स 2 इज 18। तो मेरे पास जो थर्ड पार्ट में के की वैल्यू आ रही है दैट इज 18। नाउ आई विल यूज दिस वैल्यू ऑफ के टू फाइंड आउट द रिमेनिंग पार्ट जो मुझसे पूछा गया रिमेनिंग पार्ट में। रिमेनिंग पार्ट में क्या पूछा है, कह रहा है फोर्स फाइंड आउट करो व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मुझे एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। 5 सेंटीमीटर अपार्ट इज द डिस्टेंस, सो डी इज इक्वल टू 5। और नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ के मैंने पार्ट सी में फाइंड आउट कर लिया है। के जो है वो मेरे पास 18 है तो मैंने के की जगह पे 18 रखना है। फॉर्मूला वही यूज करूंगा जो मैंने पहले ही पार्ट में बनाया था, एफ इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, मुझे एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू 18 है, न्यूमरेटर में 18 आ गया, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर होता है, डी की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर विल बी 25। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25। So 18 divided by 25 Newton is the force. If you want to convert it into the decimal, it can be 0.72. So the answer of the third part is the force is 18 upon 25 Newton, or you can also write it as 0.72 Newton. तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे जिसमें वो दोनों की वैल्यूज फर्स्ट पार्ट में नहीं देता था, सर्टेन का वर्ड यूज करता था, सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन वैल्यू, और फिर कहता था कि उसको डबल कर दो तो फिर जो है वो दूसरी क्वांटिटी निकालो। तो उसमें ये है कि हमें वी हैव टू मेक एन इक्वेशन ऑफ के इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। ये इस तरह की इक्वेशन बनानी पड़ती है और फिर इसी वैल्यू को आगे यूज करके जो है वो हम अपने सॉल्यूशन को जो है वो आगे लेके जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना क्योंकि ये रीइंफोर्समेंट वर्कशीट का क्वेश्चन है एंड यू नो दैट यू हैव टू सबमिट द रीइंफोर्समेंट वर्कशीट। तो इसको देख लेना वीडियो को, और अगर नहीं समझ में आता फिर भी तो फिर मुझसे स्कूल में ज़रूर पूछ लेना। Until then, take care. Allah Hafiz.